and welcome to the concluding lecture for this chapter, States of Matter. So what we have seen in the last lecture, you know well, we have discussed two main concepts. One is compressibility factor, and next what we have seen, that is liquefaction of different gases. Especially we have studied the liquefaction of carbon dioxide gas. The name of chapter is States of Matter, but in this chapter we discuss more about gaseous thing. So we have seen gaseous laws here in the chapter. We have seen ideal gas equation PV is equal to nRT, and then we have seen Dalton's law of partial pressure. As well, we have seen this compressibility factor and the liquefaction of carbon dioxide gas. हम अच्छी तरह जानते हैं किसी भी गैस के ऊपर टेम्परेचर प्रेशर का इंपैक्ट होता है, अलग इंपैक्ट होता है टेम्परेचर प्रेशर का. That is what we have seen over here. उसी तरीके से this compressibility factor is very important, which decides the deviation of these gases, which decide the deviation of the gases. Ideal gases follows all the laws, Boyle's law, Charles law, and all the conditions, whatever the temperature, whatever the pressure is that. Ideal gases follow all this one. But when we come to a real gases like nitrogen, hydrogen, oxygen, carbon dioxide, sulfur dioxide, these are real gases. They do not obey ideal gas at all the conditions. They do not obey especially at higher pressure and lower temperature. Lower temperature we follow nahi karte hai, and that's why there is a deviation. And this deviation is measured here in compressibility factor, that is called as Z. So Z has three values. Z is equal to 1, Z is greater than 1, or Z is less than 1. Z is equal to 1 कब आता है? Z is equal to 1. TV आपको नहीं रहता. दोनों factor अगर same होंगे, so then you can say Z is equal to 1, and that is only possible in case of ideal gas. और ideal gas तो होता नहीं है, but imaginary gas है, उस केस में हमें होता है that is Z is equal to 1 आता है. When Z is equal to greater than 1, this is called as a positive deviation. So this line is ideal gas equation graphically, where we have plotted the graph of compressibility factor Z versus pressure. Z versus pressure अगर हम graph find out करते हैं, graph draw करते हैं, तो हमें मिलता है ये parallel line which is to x-axis, parallel to x-axis. And this parallel line to x-axis indicates that this is nothing but you can say Z is equal to 1. ये Z is equal to 1. So when Z is greater than 1, we have this one. ये आता है. So ये सीधा यहाँ से ऊपर चला जाता है. इस लाइन के साथ चलता ही नहीं, इसके नीचे भी नहीं आता. So that indicates the positive deviation. Whereas these gases which comes down first and then goes up, they indicates this is the part which is called as a negative deviation. This is positive deviation, but this is a negative deviation. और ये अगर देखिए हम लोग, this is you can say carbon dioxide, methane, इसके केस में इस तरीके से होता है. ये जो केस है, that is you can say hydrogen और nitrogen की केस से होती है. So nitrogen and hydrogen gases shows only positive deviation. They do not show negative deviation. Whereas carbon dioxide, methane, oxygen, these are the gases which shows negative deviation up to certain point. Then furthermore, they also shows positive deviation, because हम अच्छी तरह जानते हैं कि real gases obeys Boyle's law and Charles law at high pressure and low temperature only. बराबर है. So अगर temperature बढ़ता जाएगा और pressure अगर कम होता जाएगा, तो they do not obey like that. So in that sense, you can say. So this is what we are here. So that is the graph. What is called as a compressibility factor. Compressibility factor is important to find out the deviation of the gases. Either it is positive, either it is negative. That is very important. Positive deviation जिसका होता है, मतलब जिसका Z is greater than 1 होता है. So these are the gases where we can say Z is greater than 1. Or these are the gases where Z is less than 1. Z is less than 1 इनका आता है. So that's why the gases having Z is less than 1 are easily liquefiable. वो liquefy किए जा सकते हैं. And the gases whose Z is greater than 1, they are difficult to liquefy. So hydrogen gas is difficult to liquefy. Nitrogen gas is a bit difficult to liquefy. But carbon dioxide, methane, and oxygen are easily liquefiable as compared with nitrogen and hydrogen. Clear? So that's why compressibility factor is important in that case. Then furthermore, we have studied actually a liquefaction of carbon dioxide. Last lecture में हो चुका है. So this is, you can say, pressure versus volume. This graph is there, and this graph is a pressure versus volume. Y-axis पे हमने लिया pressure, x-axis पे हमने लिया volume, and these are the different temperature curves. These are the different temperature curves. Just a minute.
sorry, these are the different temperature curves. मतलब this is the curve of carbon dioxide at pressure and volume. और हम अच्छी तरह जानते हैं pressure and volume का graph is nothing but the Boyle's law. So according to Boyle's law, that is you can say volume is inversely proportional to pressure. Volume is inversely proportional to pressure. इसका मतलब है अगर pressure बढ़ेगा तो volume अपने आप कम होने वाला है और pressure कम होगा तो volume अपने आप बढ़ने वाला है. Clear? So ये हम जानते हैं this is called as Boyle's law. So this is the Boyle's law curve for carbon dioxide gas. And at different temperature same ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड के कर्व है बट अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं. सो दिस इज यू कैन से 50 डिग्री सेल्सियस कार्बन डाइऑक्साइड का कर्व है एट 50 डिग्री सेल्सियस. तो एट 50 डिग्री सेल्सियस कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोज बॉयल्स लॉ. अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि रियल गैसेस फॉलो बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ एट हायर टेम्परेचर एंड लो प्रेशर. बट अगर उल्टा केस होता है लोअर टेम्परेचर होता है और हायर प्रेशर होता है तो दे डू नॉट ओबे. सो कार्बन डाइऑक्साइड 50 डिग्री और उससे ज्यादा डिग्री पे 50 डिग्री और उससे ज्यादा डिग्री पे बॉयल्स लॉ प्रॉपरली फॉलो करता है. जैसा टेम्परेचर कम होता जाएगा इट डू नॉट फॉलो. तो आप देखिए ये कर्व एकदम प्रॉपर मिलता है बॉयल्स लॉ के हिसाब से. इस कर्व का मतलब है कि जैसा प्रेशर कम होता जाएगा वॉल्यूम बढ़ रहा है या जैसा प्रेशर बढ़ता जाएगा वॉल्यूम कम हो रहा है. आप किसी भी पॉइंट पे चेक करते हो ये लाइन पे. अभी देखिए इस पॉइंट पे अगर मैं चेक करता हूँ तो इस पॉइंट पे देखिए वॉल्यूम इतना है जबकि प्रेशर इतना है. तो प्रेशर बहुत ज्यादा है वॉल्यूम बहुत कम है. और इस पॉइंट पे चेक करता हूं तो इस टाइम वॉल्यूम बहुत ज्यादा है प्रेशर उस टाइम पे कम है. सो इन दैट सेंस दिस कर्व इज एक्चुअली बॉयल्स लॉ ओबेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एट 50 डिग्री सेल्सियस. तो यही तो कहना है इसका कि रियल गैसेस जनरली फॉलो बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ एट हायर टेम्परेचर बट लोअर टेम्परेचर में फॉलो नहीं करते. ओके सो लोअर टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगा तो फॉलो नहीं करेंगे. हायर टेम्परेचर लो प्रेशर होगा तो फॉलो करेंगे. दैट इज व्हाट वी कैन से फॉर द रियल गैसेस. तो कार्बन डाइऑक्साइड के पहला कर्व है. दूसरा कर्व है जो 30 डिग्री सेल्सियस पे 30 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे 38 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर आता है. यहाँ पे 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे ये गैस लिक्विफाई होता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विफाइज एट 38 डिग्री सेल्सियस एंड 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो यहाँ पे जो प्रेशर है दिस इज 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं एंड दिस इज द टेम्परेचर व्हिच इज 38 डिग्री सेल्सियस. तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में स्टडी किया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाइज एट 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. 38 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होता है लिक्विफाई होता है एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर. सो क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर बिलो व्हिच दैट गैस लिक्विफाइज और अबव व्हिच इट इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाई. एक ऐसा पॉइंट है वो टेम्परेचर का जिसके आगे आप कितना भी प्रेशर दे दो. मतलब देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर. दोनों भी अफेक्ट करते हैं. किसी भी गैस का वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो इस केस में अगर हम प्रेशर देते हैं किसी भी गैस के ऊपर. अभी हमारे घर के अंदर भी देखिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस आता है. उसका नाम ही लिक्विड पेट्रोलियम गैस. वो हमारे सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर में भरा जाता है और इसलिए वो लिक्विफाई होता है. तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी गैस के ऊपर अगर प्रेशर दे देंगे तो क्या वो लिक्विफाई होगा. होना तो चाहिए बॉयल्स लॉ के हिसाब से. बट इट इज बीन फाउंड दैट प्रैक्टिकली इट इज बीन फाउंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड के केस में 38 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर उस टेम्परेचर मतलब हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और हमने कितना भी प्रेशर दिया तभी भी कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई नहीं होता है. तभी भी कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई नहीं होता है. एक लिमिट है. दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर. हाँ 38 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे अगर प्रेशर बढ़ाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई होगा. 30 डिग्री प्लस मतलब 39 भी करते हो तभी भी गैस लिक्विफाई नहीं होने वाला प्रेशर कितना भी दे दो. So that's why this 38 degree एक ऐसा temperature that is called a critical temperature above which carbon dioxide do not liquefy whatever the pressure you exert. कितना भी pressure exert करो वो liquefy नहीं होता है. So that's why critical temperature ऐसा define किया जाता है. It is the temperature above which gas do not liquefy. तो हर गैस का वो अलग अलग है. कार्बन डाइऑक्साइड के केस में वो 38 डिग्री सेल्सियस है. हाइड्रोजन का अलग होगा नाइट्रोजन का अलग है. क्लियर. So this is what we can say. So now so this is the point which is called as a critical temperature. Critical temperature is a temperature above which gas do not liquefy whatever temperature is this. This is called as a critical temperature. Whatever the pressure of the gas at this critical temperature is called as a critical pressure. Critical temperature पे गैस का जो भी प्रेशर होगा उसे critical pressure कहा जाता है और उसी critical temperature पे गैस का जो भी वॉल्यूम होगा that is called as a critical volume. That is called as a critical volume. So we have critical volume and critical pressure. तो सबसे पहले डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल टेम्परेचर की. तो हमने डिफाइन किया क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या. इट इज द टेम्परेचर अबव व्हिच गैस डू नॉट लिक्विफाई व्हाटएवर प्रेशर इज देयर.
and whatever the pressure that gas has at that critical temperature, that pressure is called as a critical pressure, and whatever the volume that gas has at the critical temperature is called as a critical volume. मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो भी वॉल्यूम होगा उसे क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे, और क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो भी प्रेशर होगा उसे क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे लिए क्रिटिकल टेम्परेचर व्हेन वी हैव टू लिक्विफाई द गैसेस. अब देखिए ना, इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है. भले हम लोग अभी थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी आजकल जानते हैं हम लोग कोरोना का दौर चल रहा है. कोरोना के दौर के अंदर काफी सारे पेशेंट्स ऑक्सीजन पे चले जाते हैं. तो पेशेंट जब एडमिट होता है, अगर हम उसके लंग्स में थोड़ा सा खराबी आ जाती है कोरोना के कारण, तो उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखना पड़ता है. तो काफी सारे पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट पे चले जाते हैं. तो ऑक्सीजन गैस है ना, वो गैस लिक्विफाई करके उस सिलेंडर के अंदर भरा जाता है. सो ऑक्सीजन गैस लिक्विफाई करके सिलेंडर के अंदर भरना है, ये जरूरी है, और इसलिए ऑक्सीजन गैस का बिहेवियर स्टडी करना जरूरी है. सो दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दैट. हमारे घर के अंदर लिक्विड पेट्रोलियम गैस आता है ना, हमारे घर के अंदर लिक्विड पेट्रोलियम गैस आता है, तो वो भी कितने टेम्परेचर पे लिक्विफाई होता है देखना पड़ता है. तो उसी टेम्परेचर प्रेशर पे उसे लिक्विफाई किया जाता है. तो ये डायरेक्टली उसके एप्लीकेशन है. हमारे डेली रूटीन लाइफ में ऐसे बहुत सारे गैसेस हमें यूज करने पड़ते हैं. हीलियम गैस यूज करना पड़ता है. जैसे कि आपने कभी ये सीशोर पे गए होंगे तो वहां पे गोताखोर जाते हैं, मतलब पानी में चले जाते हैं, और आपको अलग अंडरवर्ल्ड दिखाते हैं, मतलब सीशोर के अंदर का वर्ल्ड दिखाते हैं. वहां पे भी हम लोगों को ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन और बाकी सारे गैसेस का सपोर्ट उसके अंदर लगता है. वहां पे भी गैसेस लिक्विफाई करके हमारे साथ होते हैं, हमारे पास सिलेंडर्स होते हैं, है ना. सो दैट इज व्हाट कैन. ऐसे अलग अलग, या फिर एस्ट्रोनॉट ऊपर चले जाते हैं, उनके लिए भी लगते हैं. सो गैसेस का बिहेवियर स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. और कौन सा गैस क्या बिहेवियर दिखाता है, कौन से टेम्परेचर पे लिक्विफाई होता है, उस टाइम प्रेशर कितना होना जरूरी है, क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होना जरूरी है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. होप सो एवरीवन गॉट इट. दैट इज व्हाट एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग लास्ट लेक्चर. ठीक है. Now turning to the last topic of this chapter called liquid state, gaseous state is over. तो इसके अंदर जाते दिखता, देखिए कि this is the, ये जो दिखता है आपको, ये पिक जो दिखता है, इसके अंदर ये लिक्विड फेज है और गैसियस फेज है, दोनों एट अ टाइम एग्जिस्ट करते हैं. तो ये ऐसा एक एरिया है जिस एरिया में आप कहीं इसका टेम्परेचर प्रेशर जो भी है, अब यहाँ पर कहीं भी पॉइंट लो, कौन सा भी पॉइंट लो, मैं इस पॉइंट पे लेता हूँ, तो इस पॉइंट पे देखिए ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है. इस पॉइंट पे लेता हूँ तो ये प्रेशर, ये वॉल्यूम है. मतलब ये एरिया में कहीं भी पॉइंट आप सिलेक्ट करो, इसका जो भी प्रेशर और जो भी वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम पे ये लिक्विड और गैस दोनों फेज में एग्जिस्ट करता है. एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फ्लूइड. तो हम जो जनरल लाइफ में फ्लूइड शब्द यूज करते हैं, फ्लूइड नाम का वर्ड यूज करते हैं, तो उसका मतलब है दोनों फेज वहां पे उसके एग्जिस्ट होते हैं. दैट यू कैन से मोर एग्जैक्टली साइंटिफिकली ऐसा कहा जाता है. और बाकी ये सारा उसका लिक्विड फेज है, और इधर ऊपर सारा गैसियस फेज है. मतलब ये जो कर्व दिख रहा है, ये कर्व 30 डिग्री बिलो, ये सारा लिक्विड है, ऊपर का सारा गैसियस फेज है, स्पेशली फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर विद दिस? दिस इज द स्पेसिफिक केस स्टडी फॉर द गैस. क्लियर? So let's come to the concluding part of this chapter. क्योंकि gaseous state यहाँ पे और होता है, और इस chapter का concluding part मतलब liquid phase. So we'll have some information regarding the liquid phase. Hope everyone got it. There isn't any doubt to anyone. ठीक है. So let's come to liquid phase. Liquid phase. So हमारे चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट है, बट इसके अंदर हम गैसियस स्टेट ज्यादा देखते हैं, और थोड़ा सा लिक्विड फेज के बारे में 3 डेफिनेशन लिक्विड फेज के हम डिस्कस करते हैं. सॉलिड फेज तो चैप्टर के अंदर कुछ डिस्कस नहीं किया. स्टार्टिंग में जितना सॉलिड फेज के बारे में डिस्कस किया दैट्स ऑल. बाकी गैसियस स्टेट और थोड़ा सा ही लिक्विड फेज है. सॉलिड फेज हम लोग 12th स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे. ओके. नाउ लिक्विड फेज के सारे प्रॉपर्टी तो आप अच्छी तरह जानते हो. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस लिक्विड फेज, ये आप अच्छी तरह जानते हो. व्हाट आर दिस? इन केस ऑफ लिक्विड, interparticle force of attractions are moderate, thermal energy is also moderate, motion of particles are, some motions are possible. मतलब लिक्विड फेज में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर यू कैन से रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, ये पॉसिबल होते हैं. मतलब ट्रांसलेशनल उतना ज्यादा नहीं, बट हो जाता है ना. सो ये उसके अंदर पॉसिबल होते हैं इन केस ऑफ लिक्विड फेज. लिक्विड हैज द टेंडेंसी टू फ्लो. लिक्विड्स आर नॉन कंप्रेसिबल. लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम but not the shape. That is what we have seen. So all these are the properties of liquid phase we have seen. Clear? So liquid phase की property जो starting में हमने देखा, what are the properties of liquid phase, what are the properties of solid phase, what are the properties of gaseous phase. Starting में हमने देखा वो यहीं पे आ जाता है. That is liquid phase. Okay. Liquid phase के अंदर 3 important definition discuss करने हैं हम लोगों को. Number 1,
is nothing but you can say vapor pressure. Number 2 is nothing but you can say viscosity. और तीसरा है surface tension. Okay, these are 3. ये 3 डेफिनेशन हमें डिस्कस करने जो लिक्विड फेज के बारे में चैप्टर फिर यहाँ पे खत्म होता है. 3 बस जस्ट डेफिनेशन है, थोड़े से फैक्टर्स आप में दे जाए. तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर क्या है हम डिस्कस करते हैं, फिर विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन ले जाएंगे. ठीक है, अब देखिएगा दिस इज अ कंटेनर इन व्हिच वी हैव टेकन अ लिक्विड. इसके अंदर लिक्विड लिया, से इट्स अ वाटर. सो इसके अंदर हमने वाटर लिया. ओके, एंड इट इज बीन क्लोज्ड. जैसे हमारे घर में प्रेशर कुकर होता है उस टाइप उसको क्लोज कर दिया. वो फ्लैट भी होगा तो चलेगा, उसका कॉर्क जो फ्लैट भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना. ठीक है, सो इट इज बीन क्लोज्ड. ये कंटेनर है और इट इज बीन क्लोज्ड यहाँ पे. अब देखिए इस वाटर को हम जब हीटिंग करेंगे, इस वाटर को जब हीटिंग करेंगे तो ये वेपराइज होगा और ये वेपर्स इधर आएंगे और ये क्लोज होने के कारण वेपर्स बाहर नहीं जा पाएंगे. समझ रहे आप? सो दिस व्हाट वी कैन से इस तरीके से. सो दिस इज द लिक्विड सरफेस. दिस इज द लिक्विड सरफेस. लिक्विड सरफेस क्या है, इसके नीचे लिक्विड है और ऊपर वेपर्स है. वेपर्स कब बनते हैं, जब हम इसे हीट करते हैं. जैसा हीटिंग करना शुरू कर धीरे 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 यहाँ पे वेपर्स मॉलिक्यूल्स आते हैं, वेपर्स आते हैं और उनका नंबर बढ़ता जाता है. और हम जानते हैं वेपर फेज इज अ गैसियस स्टेट. ऑल दीस गैसियस पार्टिकल्स आर इन कंटीन्यूअस मोशन. दे स्ट्राइक्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर और ये कोलाइड होते हैं ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर. और ये पार्टिकल जब कोलाइड होंगे ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर दे विल एक्सर्ट द प्रेशर. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने देखा, उसके अजम्पशन देखे थे. हमने अजम्पशन में देखा कि गैसियस पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन कंटीन्यूअस मोशन. दे सफर्स द कोलिजन्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर. वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर वो कोलाइड होते हैं, स्ट्राइक होते हैं, टक्कर देते हैं. और एट अ टाइम नंबर ऑफ टक्कर यहाँ पे मिलेंगे आपको. ज्यादा टक्कर देंगे, जितने ज्यादा टक्कर देंगे दैट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रेशर. दैट विल बी अ प्रेशर. सो दिस इज द प्रेशर क्रिएटेड बाय दिस वेपर्स. सो ये वेपर जितना प्रेशर ये वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर देते हैं उतना ही लिक्विड सरफेस के ऊपर देते हैं. देखिए ना, यहाँ पे ये जो गैसियस स्टेट है इधर भी प्रेशर देगा, यहाँ पर भी प्रेशर आएगा, इधर भी आएगा और नीचे भी आएगा. ये वाटर सरफेस के ऊपर भी प्रेशर आएगा. ये जो वेपर्स है वाटर सरफेस के ऊपर भी प्रेशर देंगे, ऊपर भी और दोनों साइड में भी, सारे कंटेनर के सारे साइड में वो प्रेशर दे देंगे. So this is the pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with liquid is called as vapor pressure. So simple understanding के लिए कह सकते हैं हम लोग pressure exerted by the vapors is called as vapor pressure. But ये एग्जाम में नहीं चलेगा. एग्जाम में साइंटिफिक डेफिनेशन ऐसा चलेगा, the pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with liquid is known as vapor pressure. Is known as vapor pressure. Clear? So that is what we can say vapor pressure. What are the factors which affect this vapor pressure? अब vapor pressure is measured in torr. उसका यूनिट अगर देखते हैं हम लोग तो जितने प्रेशर के यूनिट होते हैं एटमॉस्फेरिक, टॉर, mm of mercury, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 9 per centimeter square. All these are the you can say units of the pressure. तो जितने प्रेशर के नॉर्मल यूनिट होते हैं वही वेपर प्रेशर यूनिट यहाँ पे होते हैं. बट जनरली वो टॉर में यूज किया जाता है, टॉर में यूज किया जाता है. और वाटर की अगर केस देखते हो, टॉर यूनिट है उसका प्रेशर का, वेपर प्रेशर का. जनरली उसमें एक्सर्ट किया जाता है, प्रेशर किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है. वाटर हम देखते हैं रूम टेम्परेचर पे वाटर वेपराइज होता है, इवेपोरेट होता है ना. वाटर इवेपोरेट्स एट रूम टेम्परेचर. और रूम टेम्परेचर पे जितना वाटर इवेपोरेट होता है वो 20 टॉर इतना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है. 20 टॉर. सो रूम टेम्परेचर पे जितना वाटर इवेपोरेट होता है वो 20 टॉर इतना प्रेशर एक्सर्ट करता है. अंदाज आता है आपको कितना प्रेशर होगा. 100 डिग्री को बॉईल करेंगे तो वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, है ना. हम सिर्फ रूम टेम्परेचर मतलब 25-27 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे वाटर इवेपोरेट होता है तो वो उतना प्रेशर एक्सर्ट करता है. समझ में आ रहा है आपको? सो दैट इज व्हाट वी कैन से. तो दैट्स व्हाट वी कैन से हियर लाइक दिस वन. सो दिस इज यू कैन से वेपर प्रेशर. तो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन और उसका यूनिट, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट दिस वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर अफेक्ट करने वाले एक दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 इज द नेचर ऑफ लिक्विड. नेचर ऑफ लिक्विड और नंबर 2 इज नथिंग बट द टेम्परेचर. सो देखिए पहला है यू कैन से नेचर ऑफ लिक्विड. ओके, नेचर ऑफ लिक्विड मतलब नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये पहला फैक्टर है. और दूसरा फैक्टर है यू कैन से टेम्परेचर. अभी नेचर ऑफ लिक्विड मतलब क्या होता है. अभी ये लिक्विड है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है. दोनों मॉलिक्यूल के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में इस चैप्टर के. देयर इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड एज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो दो पार्टिकल के बीच में, दो पार्टिकल किसी भी लिक्विड के दो नियर बाय के पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है और कितना स्ट्रांग वो फोर्स है,
उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनका वेपर प्रेशर कितना होगा। ये दो पार्टिकल के बीच का फोर्स अगर बहुत वीक होता है तो प्रेशर ज्यादा होगा, और इनके बीच में अगर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग है तो वहां पे प्रेशर कम होगा, क्योंकि वो वेपराइज नहीं होंगे जल्दी। आप देखिए पेट्रोल और वाटर को हम कंपेयर करते हैं, पेट्रोल और वाटर को हम जानते हैं पेट्रोल वेपराइज होता है रूम टेम्परेचर, वाटर रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट होता है, लेकिन इतना वेपराइज नहीं होता जितना पेट्रोल होता है। सो पेट्रोल के दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो इसलिए वो जल्दी वेपराइज होता है और जल्दी वेपर फेज में चला जाता है। और वाटर के दो पार्टिकल के बीच का इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट है, और इसलिए वो वेपराइज नहीं होता है। सो होप एवरीवन इज गेटिंग दैट। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर एंड पेट्रोल, पेट्रोल में दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, एंड दैट्स व्हाई दे वेपराइज मोर, सो दे हैव हायर वेपर प्रेशर। Whereas वाटर के दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है कंपैरेटिवली देन द पेट्रोल, सो वाटर उतना वेपराइज नहीं होता, तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होता है। सो नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक है तो वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा, और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग है तो वेपर प्रेशर कम रहेगा। दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड। टेम्परेचर, ये तो सिंपल बात है, आप भी जानते हो, जितना ज्यादा हीटिंग करेंगे उतना ज्यादा वेपर्स, और जितना ज्यादा वेपर्स उतना ज्यादा वेपर प्रेशर, है ना। हमारे घर के अंदर हम वाटर कई बार बॉईल करते हैं, पानी किसी वो का एवरी डे हम सब्जी बनाते हैं तो उसके अंदर बॉइल्ड वाटर चाहिए, हम लोग वाटर डालते हैं हम लोग। तो जितना ज्यादा हीटिंग करेंगे उतने ज्यादा वेपर्स, और जितने ज्यादा वेपर्स उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। सो दैट इज व्हाट वी कैन से हियर। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना वेपर प्रेशर बढ़ने वाला है। सो दैट्स व्हाट। तो वेपर प्रेशर के बारे में 4 पॉइंट्स। नंबर 1, दैट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? It is the pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with liquid is called as vapor pressure. Vapor pressure is measured in units. कौन से यूनिट्स होते हैं? प्रेशर की जितनी यूनिट्स होते हैं वो होते हैं, उसमें से खास करके देखेंगे हम लोग तो टॉर नाम का यूनिट होता है। सो वी हैव द टॉर नाम यूनिट। सो टॉर नाम का यूनिट उसके अंदर होता है। क्लियर? और खास करके वाटर की एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो रूम टेम्परेचर पे वाटर का 20 टॉर इतना प्रेशर होता है, इवेपोरेट जो वाटर होता है रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट, vapor pressure depends upon two factors: nature of liquid, and then next is the temperature. So if in liquids interparticle force of attractions are weakest, then vapor pressure is higher. If interparticle force of attractions are strongest, vapor pressure is lowest. And this is nothing but the temperature. If temperature increases, vapor pressure also increases. Temperature decreases, vapor pressure also decreases. This is regarding, you can say, vapor pressure. Next, पहला surface tension लेते हैं, फिर viscosity की तरफ जाते हैं। So what is this, you can say, surface tension. अभी हम टेंशन को अच्छी तरह जानते हैं, है ना। आप लोग टेंशन वर्ड को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन what is this surface tension, ये हमें डिस्कस करना है। What is the surface tension, ये हमें डिस्कस करना है। So let's move to surface tension. Next topic, surface tension. So this is a container. इस कंटेनर में ये वाटर है। अब देखिए, इसमें इस कंटेनर में वाटर हमने लिया है, तो इसके 3-4 टाइप के मॉलिक्यूल मिलते हैं। एक मॉलिक्यूल जो यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल जो यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल जो यहाँ पर है, और एक मॉलिक्यूल जो यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए, दिस इज द मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो सारे एक जैसे मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। मतलब दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर व्हिच इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल इटसेल्फ। मॉलिक्यूल वाटर का है और उसके सारे दिशा से वाटर मॉलिक्यूल ही है। यहाँ पे देखते हैं तो दिस मॉलिक्यूल में इस तरफ से सारे लिक्विड वाटर के मॉलिक्यूल है, और इधर से सॉलिड मॉलिक्यूल्स है। मतलब वो जो भी कंटेनर होगा, कांच, मेटल, उसके मॉलिक्यूल्स है। तो इट हैज 2 डिफरेंट फोर्सेस, एक इस वाटर मॉलिक्यूल का और दूसरा ये सॉलिड का। इधर का मॉलिक्यूल 3 मीडियम के कांटेक्ट में, दिस इज लिक्विड, दिस इज गैस एंड दिस इज सॉलिड। ये कॉर्नर इधर का भी मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल देखते हैं तो ये 2 मीडियम में, ऊपर की तरफ एयर मीडियम और नीचे की तरफ है लिक्विड मीडियम, नीचे की तरफ लिक्विड मीडियम। तो यहां से ये मॉलिक्यूल और इधर का मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे है, बिकॉज इट हैज गैसियस स्टेट, इट हैज लिक्विड स्टेट एंड हियर इट हैज अ सॉलिड फेज। तो इसके ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, इधर भी 3 फोर्स है, और यहां से लेकर इधर तक बाकी सारे मॉलिक्यूल इसके जैसे हैं, 2 मीडियम के टच में, एयर मीडियम एंड यू कैन से लिक्विड मीडियम। और ये तो बल्क में, ये सारे मॉलिक्यूल एक जैसे। ठीक है, तो उनकी बात आ रही। नाउ द थिंग इज दैट ये जो मॉलिक्यूल है उनके ऊपर अनइक्वल फोर्सेस इंटरैक्ट होते हैं, ऊपर की तरफ गैस पार्टिकल के और नीचे की तरफ लिक्विड पार्टिकल्स। और ये जो फोर्स होता है इनके ऊपर एक्ट होने वाला, जो लोअर डाउन की तरफ होता है या फिर लिक्विड की तरफ होता है, दिस इज नथिंग बट द सरफेस टेंशन। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सरफेस के ऊपर, वाटर के सरफेस के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं, आपने कभी देखा होगा, अगर हम किसी भी कांच के ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, या फिर हम लोग ब्यूरेट के अंदर वाटर भरते हैं, तो वाटर का कर्व आपको ऐसा मिलता है, ऐसा मिलता है। देखिए, ये ऐसा सीधा कर्व नहीं मिलता आपको।
जनरली वाटर का ऐसा कर्व होता है। और आप मर्क्यूरी देखते हैं, आप मर्क्यूरी, आप कभी भी मर्क्यूरी का थर्मामीटर अगर देखा होगा तो मर्क्यूरी का आपको इस तरीके से दिखता है। सो दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज कॉन्वेक्स, इस टाइप का आपको कर्व दिखता है। तो ये दोनों दिखते हैं, उसके पीछे रीजन है सरफेस टेंशन, इसके पीछे रीजन सरफेस टेंशन। वाटर का ये नीचे क्यों चला जाता है? द रीजन बिहाइंड दैट दीस आर द पार्टिकल्स व्हिच आर पुल्ड इनसाइड, इनसाइड पुल किए जाते हैं। तो ये बल्क में होते हैं, इनसाइड पुल किए जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आपको इस तरह का सरफेस मिलता है, लाइक दिस वन। ये सारे पुल होते हैं नीचे की तरफ, तो इस टाइप का फोर्स मिलता है। ऑलराइट, क्लियर विद दिस। सो डाउनवर्ड एंड दिस फोर्स इज नथिंग बट द सरफेस टेंशन। तो डेफिनेशन क्या है ना, हम इसके सरफेस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नथिंग बट द सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, line drawn on the surface of the liquid in a downward direction. This is nothing but the surface tension. किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ होता है, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट यू कैन से सरफेस टेंशन। उसे हम लोग सरफेस टेंशन ऐसा कहते हैं। सो होप सो एवरीवन गॉट इट। सरफेस टेंशन होता क्या है? सरफेस टेंशन होता है, इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ over the line drawn on the surface of the liquid in a downward direction is nothing but you can say surface tension. उसे सरफेस टेंशन ऐसा कहते हैं। Remember this? सरफेस टेंशन के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं, बस दिस इज व्हाट वी कैन से सरफेस टेंशन इतना है। वो उसके यूनिट आते हैं, दैट इज यू कैन से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसमें उसे मेजर किया जाता है, या फिर डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें उसे मेजर किया जाता है। सो ये आता है यू कैन से सरफेस टेंशन। क्लियर विद दिस? एंड लास्ट इज नथिंग बट विस्कोसिटी। अब ये विस्कोसिटी क्या होता है? देखिए आप लोग, लास्ट डेफिनेशन इज विस्कोसिटी व्हिच इज फ्रॉम द ईच एंड एवरी लिक्विड। आपने कभी कभी बाथिंग करते समय या कभी पानी में खेलते समय यू ट्राई टू मेक अ पिक ऑफ द वाटर, वाटर कैसा पिक बनाते हैं हम लोग, बट हम जानते हैं वाटर विल फ्लो डाउन, है ना? स्विमिंग या कभी रिवर में या फिर कभी अभी वेल में अगर आप स्विमिंग कर रहे हो, या घर में कभी बकेट के अंदर आप पानी में खेल रहे हो, तो अगर आपने ऐसा पिक बनाया, है ना, बड़ा होने के बाद तो बहुत कम चांसेस होते हैं, छोटे बच्चे बहुत खेलते हैं पानी के अंदर। सो वो पानी का ऐसा पिक बनाते हैं, तो पानी का पिक नहीं बनता, इट विल फ्लो डाउन। हम जैसा पानी का पिक बनाएंगे इट विल फ्लो डाउन। सो देखिए ना कि इफ यू ट्राई टू मेक अ पिक लाइक दिस ऑफ वाटर, it will flow down, इस तरीके से फ्लो डाउन हो जाएगा। so it will flow down and it will attend a plane surface, इस तरह का सरफेस आपको मिल जाएगा। so ये जो होता है, अभी इसके अंदर पानी फ्लो कैसे होता है? पानी फ्लो कैसे होता है? See, this is the layer of molecules, ये पहला मॉलिक्यूल है, दूसरा लेयर है, ये तीसरे मॉलिक्यूल का लेयर है, ऐसे सारे लेयर्स रहेंगे ना, बिकॉज पानी के अंदर एक्चुअली मॉलिक्यूल्स है, तो ऐसे मॉलिक्यूल के बहुत सारे लेयर रहेंगे। so this is the first layer, then the second layer, third layer, fourth layer, ऐसे लेयर रहेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे लेयर रहेंगे। so these layers of the water स्लाइड्स होना होते हैं, स्लाइड होते हैं, ये लेयर स्लाइड होते हैं। सबसे पहले ऊपर का लेयर स्लाइड होगा, ये तो इस तरफ चला जाएगा, तो इस तरफ चला जाएगा, फिर ये स्लाइड होगा, फिर ये स्लाइड होगा, ऐसे लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं, स्लाइड होते हैं। और वो जब स्लाइड होते हैं तो दो लेयर के बीच में, सी दिस इज द फर्स्ट लेयर एंड यू कैन से दिस इज द सेकंड लेयर, ये दो लेयर, सो फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर, ये दोनों लेयर जब स्लाइड हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उनके बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, इनके बीच में फ्रिक्शन होता है। नहीं क्या हम लोग भागते भागते सडनली अगर ब्रेक लगाना है, या हम साइकिल चला रहे हैं अचानक ब्रेक लगाते हैं, हमारा टायर जो साइकिल का वो रोड के साथ क्या होता है, स्टक होता है, मतलब स्लाइड भी हो सकता है अगर हम लोग स्लिपरी सरफेस पे हो तो, है ना। लेकिन अगर अच्छा रोड हो, प्रॉब्लम नहीं, तो दैट विल स्टक, मतलब वो उसको स्टिक रहेगा। लेकिन साइकिल का टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है, उसी तरीके से दो लेयर है मॉलिक्यूल के, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, एंड दिस फ्रिक्शन is nothing but you can say resistance to the force of flow, that is nothing but the viscosity. The force of friction between the two layers is called as viscosity. Force of friction between the two layers, दो लेयर में जो फ्रिक्शन हो रहा है फ्लो होते समय, that is nothing but the viscosity. The viscosity is the force of friction between the two layers. तो ऊपर का लेयर है ना, ऐसा ऊपर जब पानी का पिक बनाएंगे तो ऊपर का लेयर विल फ्लो फास्ट, उसके नीचे का स्लो, उसके नीचे का स्लो, ऑल लेयर हैज अ डिफरेंट स्पीड, सारे लेयर का स्पीड डिफरेंट होगा। ऊपर का लेयर ज्यादा स्पीड से जाएगा, नीचे का उसका कम, उसका एकदम नीचे का होगा तो उसका स्पीड बहुत कम होगा। सो एवरी लेयर मूव्स विद अ डिफरेंट स्पीड, and that's why there is a friction between the two layers, and that's why there is a friction between the two layers, and this friction is nothing but the viscosity. So viscosity is a force of friction between the two layers, or resistance to the force of friction between the two layers is nothing but the viscosity, and that is denoted by eta. So this is the sign, ये eta sign है, like this. Any निकालना है लेकिन ये बहुत लंबा करना है, like this. This is the eta sign. ये है eta sign. This is the viscosity. Viscosity is denoted by eta sign. Okay. So viscosity is denoted by eta sign, and this is again measured in equals से poise नाम का यूनिट है, उसमें वो मेजर किया जाता है। So हम अच्छी तरह जानते हैं हमारे टू व्हीलर के अंदर, फोर व्हीलर के अंदर हम लोग ऑयल पुट करते हैं,
इंजन के अंदर भी फ्रिक्शन होना जरूरी है. सो ऑयल्स आर मोर विस्कस. हम जानते हैं ऑयल्स आर मोर विस्कस बिकॉज विस्कोसिटी ज्यादा है, दैट्स व्हाई वो स्लोली फ्लो होता है. तो आप देखिए ऑयल अगर फ्लो करेंगे और वाटर फ्लो करेंगे तो वाटर ज्यादा स्पीड में फ्लो होगा और ऑयल स्लोली स्पीड में फ्लो होगा. रीजन बिहाइंड दैट, ऑयल में फ्रिक्शन ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा है, और पानी में विस्कोसिटी कम है, तो पानी बहुत स्पीड में फ्लो हो जाएगा और ऑयल नहीं होगा. और इसीलिए ऑयल टू व्हीलर फोर व्हीलर इंजन के अंदर यूज किए जाते हैं. नहीं तो इंजन भी लॉक होते हैं गाड़ी के. शायद आपने सुना होगा गाड़ी के बारे में जब बातें करते हैं आपने सुना होगा कि अगर ऑयल प्रॉपर नहीं है गाड़ी के अंदर तो गाड़ी का इंजन लॉक होता है. द रीजन बिहाइंड दैट देयर शुड बी अ विस्कोसिटी बिटवीन द टू स्पेयर पार्ट्स ऑफ द व्हीकल्स. इंजन में जो पिस्टन्स होते हैं उसमें अगर विस्कस लिक्विड नहीं पुट किया गया तो फ्रिक्शन नहीं हो पाता है, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो दैट विल लॉक लाइक दैट. सो दिस इज व्हाट वी कैन से. दिस इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी. व्हाट इज विस्कोसिटी? Viscosity is nothing but you can say resistance to the force of friction between the two layers of any liquid. That is nothing but that is called as viscosity. So that is measured in Poisson law. So these are the definitions regarding the liquid phase. These are the definitions regarding the liquid phase. Is there any doubt, difficulty with this one? So मेरे ख्याल से this is the end of chapter from my side. Total chapter यहाँ पे खत्म होता है हमारा. We are in this states of matter. Within 5 minutes we'll revise the chapter. क्या डिस्कस किया हमने कल परसों के लेक्चर में. अगर आपके डाउट है तो आप डाउट पूछिएगा कि whatever the doubt you have regarding this chapter, उसको ज्यादा एक्सप्लोर करूंगा, क्लियर करूंगा, ताकि you should be ready to prepare the chapter. Let's come once again to the states of matter. We know very well, first chapter we are discussing chemistry is nothing but some basic concepts in chemistry, where we have seen that matter consists of, matter is anything which occupies space and has the mass, it's called as matter. And this matter has 3 states: solid, liquid, and gaseous one. So there are 3 states of matter, and these 3 states of matter depends upon 2 major factors. There are many factors responsible, but 2 factors are very important. Number 1 is nothing but you can say interparticle force of attraction, and number 2 is nothing but thermal energy. So in case of solid phase, thermal energy is lowest and interparticle force of attractions are strongest, and in case of gaseous state, thermal energy is highest and interparticle force of attractions are weakest. Then furthermore we have seen points of differentiation, or you can say properties of solid, liquid and gaseous one, जो आप बचपन से जानते थे. बचपन से जानते हैं कि what is solid, what is liquid and what is gaseous state. Solids have a definite shape, definite volume. Solids have sharp edges. Solids have strongest interparticle force of attractions. Then they have lowest thermal energy. Restricted movement of the particles are there in the solids, and solids do not flow. Solids are non-compressible. वगैरह वगैरह वगैरह. These are the points. और उसी कंपैरिजन में हमने लिक्विड के और उसी कंपैरिजन में हमने सॉलिड के पॉइंट डिस्कस किए हैं. Furthermore, उसके बाद देखा हमने there are interparticle force of attractions between the particles. There are interparticle force of attraction. There are 5 interparticle force of attractions we have discussed. Number 1, dipole interaction. Number 2, ion dipole interaction. Number 3, dipole induced dipole interaction. Number 4, London forces. And number 5 is nothing but you can say hydrogen bonding. किसमें होता है, क्या होता है, वो हमने डिस्कस कर दिया. ठीक है. उसके बाद गए हम लोग लिक्विड फेज के लिए. We have seen the properties of liquid phase. Liquid phase के प्रॉपर्टी क्या है? What are the measurable properties of liquid? Liquid के बारे में mass, pressure, volume, temperature, density, diffusion. These are the properties which can be measured for the gaseous state. What we have seen. Then furthermore we have seen that is you can say gaseous laws, which is the core part of the chapter. Second section में चलते हैं तो. So gaseous laws क्या होते हैं? Gaseous laws gives the relation between temperature, pressure, volume and number of moles. For the gas one, किसी भी गैस के लिए temperature, pressure, volume and number of moles का relation देने वाला factor जो है उसे हम लोग gaseous laws कहते हैं. There are 4 gaseous laws we have discussed. Number 1 is you can say Boyle's law, which says volume is inversely proportional to pressure. Number 2 is nothing but the Charles law. Charles law states that volume is directly proportional to temperature. या फिर more scientifically define करना चाहते हैं तो according to Charles law, volume of a given mass of gas increases or decreases by 1/273 of its original volume for every degree rise or fall in temperature. That is nothing but the Charles law. So, third one we have seen that is nothing but you can say Gaseous law. Gaseous law states that pressure is directly proportional to temperature. So pressure is directly proportional to temperature. Avogadro's law states that equal volume of all gases contain same number of molecules. That means volume is directly proportional to number of moles. So if number of moles increases, volume also increases. Number of moles decreases, volume also decreases. Combining all of these laws, we got ideal gas equation. PV is equal to nRT. That is ideal gas equation. What we get it? We have derived the ideal gas equation. Also, we have seen Dalton's law of partial pressure. So Dalton's law of partial pressure state that partial pressure of any individual component is the product of
pressure of its pure component into its mole fraction. Partial pressure of any component is the product of pressure of its pure component into its mole fraction. That is nothing but you can say partial pressure. वो भी हमने उसके अंदर डिस्कस कर दिया, उसका डेरिवेशन हमने डिराइव कर दिया. Clear? उसके बाद देखा हमने that is compressibility factor Z. So what is the compressibility factor? वो हमने डिस्कस कर दिया, that is Z. Z is equal to PV upon nRT, and that is important. That is responsible for the deviation of the gases. We have also seen what is the difference of ideal gas and real gases में क्या difference होता है, and how compressibility factor depends upon that. Compressibility factor is given by Z, and Z has the three values. Z is equal to 1 for ideal gases. Z is greater than 1 for you can say positive deviation. Z is less than 1 for negative deviation. That is also what we have seen. Furthermore, we have seen that is you can say kinetic theory of gases, KTG. We have seen assumptions of kinetic theory of gases. Then furthermore, we have seen that is nothing but the we have seen compressibility factor and liquefaction of carbon dioxide gas. Carbon dioxide gas का liquefaction कब और कैसे होता है, उसी के अंदर ये तीन डेफिनेशन देखे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं डेफिनेशन. व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर एंड व्हाट इज क्रिटिकल वॉल्यूम. तो क्रिटिकल टेम्परेचर का डेफिनेशन सबसे मैंने जिसके अंदर मैंने बताया कि दिस इज द टेम्परेचर अबव व्हिच gas do not exist in a liquid phase whatever the pressure is. That is called critical temperature. And the pressure at critical temperature पे जो भी pressure होता है उसे critical pressure कहा जाता है, और critical temperature पे जो भी volume होता है उसे critical volume कहा जाता है. And lastly we have seen liquid phase, और liquid phase के अंदर हमने ये देखा that is you can say vapor pressure, surface tension and viscosity. Pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with liquid is called vapor pressure. That is measured in torr. And the factors affecting vapor pressure is nothing but the nature of liquid and the temperature. Also, we have seen surface tension. It is the force acting perpendicular to the line drawn on the surface of the liquid towards a downward direction is nothing but you can say surface tension. That is also what we have seen over here. Furthermore, is nothing but the viscosity. Viscosity is nothing but the resistance to the flow of liquid, or friction between the flow of the liquid between the two layers of the liquid is nothing but you can say viscosity. Viscosity is measured in voids. That is what we have seen. And we have the viscous liquids, oils and all that is used. The water has comparatively lower viscosity, whereas oil has the higher viscosity because friction is more. So with this chapter ends over here. So hope so everyone got it. Tomorrow we may come up with the numericals or whatever the doubt if you have here. Again and again I am appealing. मैं आपको सूचित करता हूँ, अपील करता हूँ कि तुम में से जिनको भी जिस किसी टॉपिक के अंदर डाउट हो, please read the chapter today. Go through the topic well. And tomorrow, let me know whatever the topic you want, more explanation, more detailed explanation for that. Then I will go accordingly if you have the doubts. Otherwise, this chapter is done from my side. We'll go to the numerical side of the chapter. That's all from my side. Thank you very much. See you tomorrow then.